بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ تو خمپاشی کے بعد آپاشی مومن کے دل میں کلمہ کے بیج ہوتا ہے، اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ بیج معرفت کا ہر دل میں ہوتا ہے جو عالم ارواح میں تجلی ہوئی تھی، الست بربکم، تو وہ تجلی کا بیج ہر دل میں ہے۔ اور اس کی مثال حضرت دیتے تھے کہ جیسے بڑ کا پیڑ ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو بڑ کا پیڑ اتنا بڑا پیڑ ہوتا ہے، لیکن بیج اس کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے اس چھوٹے سی بیج میں اس میلوں پھیلے ہوئے درخت کی اللہ پاک نے ایک سکت اور استطاعت رکھی ہوتی ہے۔ وہ اگر اس کو مناسب ماحول مل جائے اور مناسب نگرانی مل جائے، تو اسی طرح فرماتے تھے کہ ہر انسان کے دل میں معرفت کا بیج موجود ہے۔ اس کے لیے وہی تخم پاشی کہ مناسب زمین اور اس کی حرارت اور آبپاشی اور اس کا موقع محل کے ساتھ اس میں جو ہے اس کو پانی دیا جائے اور اس کی نگرانی کی جائے، اس کی جو ہے نامناسب شاخوں کی تراش خراش کی جائے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ پھر شیخ الاشجار بن جاتا ہے، کہ ان کا بھی شیخ اور اس کے جو لٹکتے ہوئے وہ کلمیں ہوتی تھیں، اس کو حضرت وہ داڑھی سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ داڑھی والا شیخ جو پودوں کا بھی وہ شیخ بن جاتا ہے۔ تو خمپاشی تو ہر دل میں ہے۔ پھر اس طرح خاص طور پہ مسلمانوں جو ہے جو کلمہ گو ہیں وہ تو موجود ہے، ایمان کے حرارت کی بیج موجود ہے۔ اب اس کا نور پھٹے اور سرور دل کے اندر محبت آئے، تو تب جو ہے یہ وہ تناور تنا بنے گا، درخت بنے گا جو پھلدار بھی ہوگا، سایہ دار بھی ہوگا، جو اس کی ذات کو بھی فائدہ دے گا اور عالم انسانیت کو بھی فائدہ دے گا، کہ اپنے ذات کے لیے بھی کارآمد ہوگا اور انسانوں کے لیے بھی ایک کارآمد ہوگا۔ تو اسی کے لیے وہ اہل اللہ کی صحبت شرط ہے، کونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کلمہ گو جو کلمے کا بیج جو موجود ہے، اتقوا اللہ، تقوی والی زندگی اختیار کرو، رب چاہی زندگی اختیار کرو، 24 گھنٹے اور ہر آن اور ہر سانس میں اس کی جو ہے چاہت کا خیال رکھو، وہ اسی کے مطابق زندگی گزارو، من چاہے زندگی چھوڑ دو۔ تو یہ تقوی کا وہ جو اتقوا اللہ آئے گا کیسے؟ متصل اللہ پاک نے اس کے حصول کا بھی ذریعہ خود فرما دیے ہیں، کونوا مع الصادقین۔ میت صادقین بھی ہے یا صحبت صالحین جو ہے، یہ اس تخم پاشی کے اوپر آپاشی کا کام دیتی ہے، اور پھر وہ جب وہ جو کومبل پھٹتی ہے بیج سے، تو پھر وہ نگرانی کا کام بھی صحبت صالحین دیتی ہے۔ بے ہنگم وہ شاخوں کی تراش خراش سے پھر اللہ پاک اس کو زیادہ کارآمد انسان بنا دیتے ہیں۔ تو صحبت اہل اللہ کے 2 درجے ہیں، حضرت آج اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ صحبت کے 2 درجے ہیں۔ اگر اہل اللہ کی صحبت حصیہ بھی میسر ہو، یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کہ اگر وہ موجود ہیں کہیں قرب و جوار میں اور ان کی مجلس ہوتی ہے باقاعدہ، عام طور پر ہمارے بزرگان دین کے اثر کے بعد سے
मगरिब इशा ये उनकी मजालिस के औकात होते हैं। तो हज़रत फरमाया अगर ऐसे कोई करीब कुर्ब जवार में मजलिस है, और अहलुल्लाह की पहले निशानी भी बता दी हैं कि हर सियाह को उस दर्जे का आदमी न समझा जाए। हज़रत फरमाते थे लतीफ़े के तौर पे कि बुजुर्गी तो आजकल बड़ी आसान हो गई है, लंबा कुर्ता पहन लो, दाढ़ी बना लो, टखनों से शलवार को ऊपर कर लो, हाथ में तस्बीह ले लो, वो बुजुर्ग हो गए हुए। अगर कोई बोलना है आता है, ऑल फॉल बकने की कोई है चर्ब ज़बानी, तो उलूमुल हिक्म के लिए कहते हैं कि इनकी बातों को हम नहीं समझ सकते, ऐसे गहरे इल्म बताते हैं। और अगर बोलने की कोई तुक नहीं है उसको, तो चुप शाह है जी, बोलता नहीं चुप शाह। तो फरमाते ये बुजुर्गी से अल्लाह हमारी पनाह, समझ आएगा ना। इसको हज़रत पीछे शेर में कहना कि बहुत से इंसान इब्लीस की शक्ल में फिर रहे हैं। तो वो निशानियाँ तो 8 बता के आए हैं पीछे के अहलुल्लाह जो है सही अक़ीदा हो और मुत्तबी सुन्नत हो और इल्म ज़रूरिया रखता हो, और किसी अहलुल्लाह से अहले हक़ की सोहबत में मुद्दत मदीद तक रहा हो, फिर अकाबरीन ने उनको इसकी बाकायदा इजाज़त दी हो, समझ आ गया। फिर इसमें उसके पास बैठने वालों के अक्सर के हालत में तब्दीली आ रही हो, और समझ आ रही तो, और उस ज़माने के बुजुर्गान दीन भी उसके पास आते जाते हों। ये वो मोटी मोटी निशानियाँ बताई अहलुल्लाह की। अब उनके सोहबत की अहलुल्लाह की 2 दर्जे फरमाने के, अगर वो मौजूद हैं आस पास इस किस्म की, तो बड़े आला दर्जे की चीज़ है। सोहबत नेका अगर यकसात अस्त बेहतर अस्त 7 साल ज़ुहद तात अस्त। सोहबत नेका अगर यकसात अस्त बेहतर अस्त 7 साल ज़ुहद तात अस्त। एक जगह हज़रत फरमाते हैं कि ये तो मौलवी साहब ने 7 साल फरमाया, अगर मैं इस शेर को बनाता तो 1000 साल कहता है। बेहतर अस्त तात 1000 साल अस्त। नेक लोगों की एक घड़ी की सोहबत जो हूँ अहलुल्लाह के दर्जे की, वो चुपशाह वाले न हों। घड़ी की सोहबत 100 साल की ज़ुहद और इताअत से बेहतर है। इसी तरह अहले हक़ की सोहबत के मुकाबले में अहले बातिल की सोहबत की ये हालत है, अल्लाह बचाए। सोहबत साले तुरा साले कुनत। अब जो बुरी सोहबत है उसकी तरफ हज़रत फरमाया, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। बुरों की सोहबत पैगम्बरों को बेटों को भी बुरा बना देती है। इसी तरह अहले बातिल की सोहबत की हालत ये है, तातवानी दूर शवज यार बद बदतर बुदाना मार बद। यानी यार बद जो है ना, बुरे साथी या बुरी सोहबत, अगर तुम में कुंभ हिम्मत और कुव्वत है, तातवानी दूर शवज यार बद, बुरे साथ सोहबत को छोड़ दो, बहुत दूर हो उससे। और यार बद जो बुरा साथी है या बुरी सोहबत है, सांप से भी बदतर है, क्योंकि मार बद तन्हा हमें बरजान जंग, यार बद बरजान व बर ईमान जंग। जहरीला सांप तो जान ही को मार देगा ना, डसा और बस मर गया, मगर बुरा दोस्त ईमान और जान दोनों को ख़त्म कर देते हैं। जान तो गई, कितने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं कि नशों में पड़ गए हैं, उनकी जान तो गई, ईमान भी चले जाते हैं उनके। और अगर अल्लाह अहले हक़ की सोहबत हिस्सिया मुयस्सर न हो, इस किस्म के बुजुर्गान दीन हज़रत फरमाते थे कि कामयाब होते जाएंगे लेकिन नायाब नहीं होंगे। पहले तो हर महल्ले में अहलुल्लाह होते थे, साहिब निस्ब बुजुर्ग होते थे। हम जब अपने पेशावर की तरफ जाते थे तो
तहज्जुद के वक़्त हर घर से आवाज़ आ रही होती थी, या तो जहर से ज़िक्र की या तिलावत कलाम पाक की। औरतें पहली अजान जो है सुबह से पहले उठती थी घर के काम काज करके। इसको मायूब समझा जाता था कि कोई सफाई सुथराई सूरज निकलने के बाद करें। तो हर घर में अहलुल्लाह मौजूद होते थे। अब तो जब निकलो तो शहर कब्रिस्तान का नमूना दे रहा था। जिक्र का कोई कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। हज़रत फरमा दिया अगर आवाज़ आ रही होती तो वहाँ कुर्बान की आवाज़ आ रही होती है, सही नहीं, यानी मौसीकी, अल्लाह बचाए। तो अगर अहले हक की सोहबत से सिया मुयसर न हो, क्योंकि हर शहर में ऐसे लोग मौजूद नहीं होते, फिर दूसरी सूरत ये है कि उनसे ख़त व किताबत रखो। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, समझ आएगी ना। वो हमारी बात लंदन में सुनी जा रही है, यूरोप में भी सुनी जा रही है, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, हर एक की फीडबैक भी आ रही है। और वो कुछ न कुछ लिखते हैं। तो ये ख़त व किताबत भी एक ताल्लुक़ का ज़रिया है। मगर खाली यही नहीं कि नोट भेजो या रुपये भेजो, खैरियत मंगाओ या बेटे के वास्ते कुछ और मंगाओ। खैर ये भी सही कि उनसे दुआएं कराएं अगर दूसरे काम से फुर्सत हो, लेकिन असल मकसूद ये है कि जब लिखो अपनी बीमारियां लिखो कि मुझ में हसद है, किबर है, बुग़्ज़ है, सुस्ती है अमाल में। अपने मामूलात लिखो कि मुझ में ये ऐब हैं और ये कर रहा हूँ, 24 घंटे में ये काम करता हूँ, अब आइंदा मैं क्या करूँ। ये चीज़ें पूछने की और इस्तिग़फ़ार अमल हो। जैसे अगर तबीब के पास हो तब तो सुभान अल्लाह, अगर किसी डॉक्टर के पास घर है और उनकी तिब के पास हो तो सुभान अल्लाह, और अगर दूर हो तो ख़त में जो हाल हो वो लिखो और नुस्खा वो तजवीज़ करके भेजिए उसे। बरतने के बाद फिर हाल लिखो, बरतो उसको कि उसको पियो, नुस्खे वैसे इस्तेमाल करो जैसे उसने बताया है, और उसके बाद फिर हाल बताओ। यही इत्ला और इत्तिबा के दो चीज़ें हैं। शेख के हैं 2-4 हक रख इनको याद, इत्ला और इत्तिबा, एतमाद और इनकियाद। असल काम करने के तो ये हैं। इसी पे इंशाअल्लाह जारी रखेंगे सोहबत के आगे दर्जे को। आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।